అఖిల భారతీయ విద్యా భారతి శిక్షా సంస్థాన్ ఆధ్వర్యంలో 34వ జాతీయ బాస్కెట్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బాస్కెట్ బాల్ గ్రౌండ్లో శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు. భారతీయ విద్యా కేంద్రం ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ పోటీలను రాజ్యసభ సభ్యుడు జీవీఎల్ నరసింహారావు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉపకులపతి ఆచార్య పీవీజీడీ ప్రసాదరెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి హాజరై मैं अवधानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री जीवीएल नरसिम्हा जी का भी स्वागत सत्कार करें। श्री सुनील महांती जी से भी अनुरोध है कि वे भी इस स्वागत सत्कार में शामिल हों। పాపా కొంచెం అట్లే అమ్మా. సార్ माननीय श्री पीवीजीडी प्रसाद रेड्डी जी, उपकुलपति आंध्र विश्वविद्यालय, आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। आपके निर्देशन में 12 पीएचडी, 18 एमफिल और 259 एमटेक प्रोजेक्ट्स कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में किए गए हैं। स्वागत सर। मैं अवधानी जी से अनुरोध करती हूँ कि उनका भी स्वागत सत्कार करें। कंप्यूटर साइंस वेरी वेल नोन कंप्यूटर साइंस సార్ కొంచెం అట్లా రా. మీరు గురుగారు కదా మీరు మీ శిష్యులు నాకు శిష్యులు సార్ క్రీడాకారులు మార్చ్ ఫాస్ట్ నిర్వహించారు. मंच के आगे से गुजरता हुआ मध्य क्षेत्र, भारत के मध्य में we are here conducting the 34th basketball all India tournaments of Vidya Bharati, hosted by Bharati Vidya Kendram of Visakhapatnam, and this is facilitated by बास्केटबॉल हमारा प्रसाद जी और प्रेसिडेंट सुनील महंती जी और हमारा खेल परिषद के मुखिया मुक्तेश जी, सबको प्रणाम करते हुए आए हुए बंधु भगिनी अतिथिगण को उनको भी कुछ समझ में आए। अभी विद्या भारती देशव्यापी बड़ा शिक्षा संगठन है. It has its presence felt across the country in all the states. 2, 3 very excellent people. I'm extremely happy and privileged to be there on the dais in the midst of all these wonderful people. Well, to begin with, Sri GVL Narasimha Garu, I extend a very warm welcome to him to the precincts of Andhra University. And we have, another towering personality who requires no introduction throughout India, Ramkrishna Garu. And, all these very wonderful people who have been introduced to you, and in fact they also gave their address. I see all the other members who are representing the organization, and more particularly the young children. We are all here today. We are so proud of you. You see, when you are marching past from this particular place,
my own observation. You're all from different places. I see you with different skin color. One thing that we all notice from here is that there is a small common thread that is connecting each one of you. That is the culture of this proud country, India. In the prayers, it was in fact sung by them, conveying that Hamsa Vahine, Jnana Pradayane, Vidya Pradayane. These are the beautiful words, in fact, that reach my ears, music to my ears. But you see, the goddess, through the Hamsa Vahine, Jnana Pradayane, she was in fact showering her blessings on this entire camp. రామకృష్ణ రావు గారు, అవధాని గారు, టిఎస్ఆర్ ప్రసాద్ గారు, మహంతి గారు, అలాగే खेल परिषद के अध्यक्ष मुक्तेश गारू और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए आप सभी को विशाखापट्टनम की ओर से, हम सब की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आपने अभी अभी बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण देखा है, एक नया संस्कृति का, नए डांस प्रक्रिया। बट आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड विजया भारतीज अनपैरेलल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो संख्या अभी विजया भारती जी के प्रमुख और अध्यक्ष जी बताए, रामकृष्ण राव गारू ने 24,000 स्कूल पूरे देश में, मैं जानता हूं ये देश के सरकार जितने स्कूल चलाती है उसके कई ज्यादा स्कूल आप चला रहे हैं। नहीं देश नहीं, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूं। और 36 लाख विद्यार्थी आपके हमारे विद्या भारती के अलग अलग राज्यों में 24,000 स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये मैं मानता हूं राष्ट्र निर्माण में विद्या भारती का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं आप सबको विद्या भारती के इस कंट्रीब्यूशन के लिए हम सब इसका समर्थन करें। इसके लिए हम सब let us all join in clapping for Vidya Bharati first of all. And these sporting events, I am sure India is making rapid strides in sports. I am sure all of you are aware. हमने अभी एशियन गेम्स में प्रतियोगिता में हमने 107 मेडल जीते हैं, जो अब तक के लिए सबसे हाईएस्ट मेडल टैली है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है। आप जैसे युवा खिलाड़ी आगे बढ़ करके वर्ल्ड में भारत के नाम को रोशन करने के लिए एक बड़ा कदम कर रहे हैं। तो मैं आप सबको और सभी खिलाड़ियों को और जो एशियन गेम्स में जीते 107 मेडलिस्ट को, सबको हम सबके ओर से बधाई देता हूं। In the Olympic Games also we have won the highest number of medals, 7 medals last time in 2020 Tokyo Games. So India is making rapid strides in sports. Unlike 30-40 years ago, unlike 20 years ago, today people are looking at sports also as a major sporting arena. You can not only make your country proud, you can make your family proud, and you can even build a career out of sports. तो इसलिए आप सब इतने दूर से देश के सभी राज्यों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप सब आए हैं, और आप सबको सफलता मिले। और जिनको सफलता नहीं मिलती है, आगे सफलता के लिए जितना हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उतना ही स्पोर्ट्स में, फिटनेस में भी हम इस पे भी हम फोकस करें। ये सब मैं आप सबसे आग्रह करते हुए मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में विद्या भारती के खेल परिषद के द्वारा तैयार होकर जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले हैं,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले हैं। आप सबको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगी। मैं ऐसा क्योंकि जो एनकरेजमेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत कम होते हैं, अंडर आए हैं, तो इसके लिए मुझे आप सबको कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको जो महत्व मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए उसका उपयोग करें, उसमें बहुत अच्छे तरह से ट्रेनिंग ले। केंद्र सरकार के द्वारा भी खेल इंडिया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बैक